के लिए। थैंक यू जीसस। Thank you. Praise the Lord. हालेलुया। So how are you all? कैसे हैं आप सब? Blessed. आशीर्वादित बोलिए। Amen. So you heard yesterday's message. तो आपने कल का संदेश सुना। Amen. Amen. You're free from sickness and disease. बीमारी और रोगों से आप आजाद हैं। You know, Sunday is a big day. और रविवार एक बड़ा दिन We है। remember our Lord Jesus, हम हमारे प्रभु यीशु को याद who करते rose हैं, up from the grave. जो कब्र से जी उठा। He's the only one. और वही एकमात्र वैसा है। Amen. Amen. He's the only one वही एक है who rose up. जो तीसरे दिन जी उठा। Amen. Amen. No other leader दूसरा और कोई गुरु नहीं है। has risen from the grave. कोई भी दूसरा गुरु या कोई भी व्यक्ति मौत से जी नहीं उठा So है। you should be proud of him. तो इसलिए आपको यीशु पे अभिमान होना है। Amen. Amen. So today we're going to learn something. तो आज हम कुछ सीखेंगे। If God willing, I'll share some mysteries. प्रभु की इच्छा हो तो मैं कुछ रहस्य की बातें बताऊंगा। I don't know how to do it. मैं नहीं जानता कैसे करूं। Okay. Today I'll be speaking about the blood of Jesus. आज मैं यीशु के लहू के बारे में बात करूंगा। And it's a very powerful message. और बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश है। Father, we thank you for this day. पिता इस दिन के लिए धन्यवाद। Every day is made by God. हर रोज प्रभु का बनाया हुआ है। He made the sun, the moon, the stars. और प्रभु ने ही चंद्रमा, सूरज और तारों को बनाया We है। didn't make it. हमने नहीं, No man made it. किसी इंसान ने भी नहीं। When we were born, we saw all this. और जब हमारा जन्म हुआ हमने इन सब चीजों को देखा। We didn't bring by birth. हमने जन्म से इन चीजों को नहीं लाया। We didn't choose हमने इन्हें चुना नहीं to be born in certain family. कि हम इस परिवार में जन्मेंगे। We didn't choose to be born in whatever nation we are born. जिस देश में हम पैदा हुए हैं उस देश को हमने नहीं चुना। We didn't choose anything. हमने कुछ भी नहीं चुना। You brought us here, Father. प्रभु आप हमें यहाँ लेके आए हैं। And when we saw everything, और फिर हमने सब कुछ देखा। was already there. सब कुछ पहले से ही था। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। You are the creator, आप ही निर्माण the करता है। provider, आप ही सिरजनहार the है। sustainer. हमें राखन करने You are वाले everything. हैं। आप ही हमारे सब कुछ है। Amen. Amen. You know our life. आप हमारे जीवन को जानते हैं। You know our past, present and future. हमारे गुजरे कल को, आज को और आने वाले कल को आप जानते हैं। We don't even know where we were before we were born through our mother. हमारे माँ के कोख से जन्मने के पहले हम जानते नहीं हम कहाँ थे। But you knew us. पर आप हमें जानते Because the हैं। Bible says it. क्योंकि बाइबल ऐसा कहती You है। knew us before we were formed in the mother's womb. माँ के गर्भ में हमें बनाने के पहले से आप हमें जानते हैं। You know everything. आप सब कुछ जानते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We belong to you. हम आपके हैं। Amen. आमेन। Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। Thank you for your grace and mercy. आपकी कृपा दया के लिए Thank you for धन्यवाद। Jesus. यीशु के लिए धन्यवाद। Because of him, और उसी के कारण we have life. हमारे अंदर जीवन है। Amen. आमेन। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। resist the devil. शैतान का हम सामना करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Okay, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, the most important topic is the blood of Jesus. और सबसे महत्वपूर्ण विषय है यीशु का लहू। Remember this. ये बात याद रखिए। Right from the beginning शुरुआत से ही of the Bible बाइबल के till the last, अंत तक there's a thread of the blood of और Jesus. यीशु के लहू के बारे में सब कुछ कहा गया है। You know, Holy Spirit has revealed many mysteries about this blood. और इस लहू के बारे में पवित्र आत्मा ने बहुत से रहस्यों का खुलासा किया I है। don't know whether I'll be able to share those mysteries मैं नहीं जानता हूँ सारी रहस्य मैं आपको बता पाऊंगा या because नहीं, many have questions क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल है whether the blood of Jesus was physical or spiritual. कि यीशु का लहू शारीरिक था या आत्मिक था। Holy Spirit, I asked all this and He has revealed to me. और मैंने ये सारी बातें पवित्र आत्मा से पूछा, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। There will be some things which will be hard for you to believe और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको यकीन करने में कठिन होगा, because Jesus took that blood to heaven. क्योंकि यीशु अपना लहू स्वर्ग लेके गए। How can He take a physical blood? तो कैसे शारीरिक लहू लेके जा सकता है यीशु? Hello? But it was the physical blood. पर वो उसका शारीरिक लहू ही था। But then how did He do it? तो फिर यीशु ने ये सब कैसे किया? And the Holy Spirit revealed to me. और पवित्र आत्मा ने मुझे Which will be बताया little है tough for you to understand. और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इन सारी बातों को समझना। He said that every blood has the spirit of life. और पवित्र आत्मा ने कहा कि हर एक लहू में आत्मा का जीवन है। And He separated that spirit of blood from the blood. और उस Spirit of life from the blood. जीवन के आत्मा को उस लहू से उसने अलग किया। So
That's the deep mysteries तो ये बहुत ही गहरी रहस्य की बातें हैं, which when I find time I will speak to you. और जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। But this is very powerful. पर ये बहुत ही सामर्थशाली There is है। power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ है। Amen. आमेन। Without the blood there is no forgiveness. लहू के बगैर कोई माफी नहीं है, Without the blood heaven does not accept us. और लहू के बगैर स्वर्ग हमें नहीं स्वीकारता, We cannot enter heaven without the blood. और इस लहू के बगैर हम स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकते। Amen. आमेन। It's the blood of Jesus और ये यीशु का लहू ही है that takes us to heaven. जो हमें स्वर्ग लेके जाता है। Okay, let's start. शुरू करेंगे। Now I've written a very big message. अब मैंने बहुत बड़ा संदेश I लिखा know है। it's a little difficult, but okay. Throughout the Bible, और बाइबल में the blood represents life, लहू जीवन को ही दर्शाता है, and shedding of blood और लहू का बहाना in turn represents death. ये मौत को दिखाता है। Because of the just penalty of human sin against God, और लोगों ने जो प्रभु के खिलाफ पाप किया था उसके न्याय के लिए, which is death. जो कि मौत है, That's what Romans 6:23 says. रोमी 6:23 यही कहता है। Now in those times, अब उन दिनों में, in the Old Testament, you can say, पुराने करार के दिनों में आप कह सकते हैं, God used the blood of animals प्रभु ने जानवरों के लहू का इस्तेमाल किया as a temporary provision, एक थोड़े समय के प्रबंध के रूप में, not a permanent requirement. एक सदा के जरूरत के रूप में Temporary नहीं, provision कि थोड़े समय के लिए ये प्रबंध है for the forgiveness of sin. ताकि पापों की क्षमा की जाए। But the reality was to come later on. पर हकीकत आगे चल के आने वाली थी। From the very beginning of human history, और मानव जाति के इतिहास के when शुरुआत Adam से and ही, Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया, God used the blood of Jesus, the blood of animals, तब परमेश्वर ने जानवरों के लहू का इस्तेमाल किया to make them clothing, to cover them. ताकि उनके लिए कपड़े बनाए और उन्हें ढांक सके। It was an animal skin, और वो एक जानवर की चमड़ी थी, so the blood was shed, तो इसलिए लहू को बहाया गया, and that just temporarily covered them of their sin. और उस बात ने उनको पापों को थोड़े समय के लिए ही ढक के रखा। Hebrews 9:22 is a very powerful verse, इब्रानी 9:22 बहुत ही सामर्थशाली वचन है, which says, जो कहता है, God's law says परमेश्वर का नियम कहता है that without shedding of blood there is no forgiveness. कि लहू के बहाए बगैर कोई पाप की क्षमा नहीं हो सकती, There is no forgiveness. क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगी। That means sin cannot be removed इसका मतलब पाप को निकाला नहीं जा सकता according to God. परमेश्वर के अनुसार। Whatever people may say, जो भी लोग चाहे कहे, but if the blood is not shed, पर अगर लहू नहीं बहाया there गया is no forgiveness. तो फिर पापों की क्षमा नहीं हो And सकती। if we don't know this, और अगर इस बात को आप नहीं then जानते our sins cannot be forgiven. तो फिर हमारे पापों की भी क्षमा नहीं हो सकती। We cannot go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, That's so important. और ये बहुत जरूरी है जानना। So we must study about the blood. इसलिए हमें इस लहू के बारे में सीखना ही है। And I wrote a very big message. और मैंने बहुत ही बड़ा संदेश लिखा I was है, sitting with the Lord, wanting to know more about the blood, और मैं प्रभु के सामने बैठा था और इस लहू के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, because I understood that the blood is very important. क्योंकि मैं जान गया कि ये लहू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So the blood of animals तो इसलिए जानवरों का in the लहू Old Testament पुराने करार में, were done repeatedly, और वो बार बार किया जाता था, but the New Testament blood of Jesus पर नए करार में यीशु का लहू was one time, केवल एक ही बार करना था, one sacrifice, एक ही बलिदान था, which needed to be done again. और उसकी दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं थी। Because the just penalty of human sin और- is death, और क्योंकि मानव ने जो पाप किया है उसका न्याय सजा है मौत, and so the blood had to be shed. और इसलिए लहू का बहाना जरूरी था। The high priest in the Old Testament और पुराने करार के जो महायाजक had थे, to do this year after year, उन्हें हर साल ये दोबारा करना पड़ता था, but yet it was a temporary thing. और फिर भी वो थोड़े समय का ही प्रबंध होता था, Because Hebrews 10:4 says, क्योंकि इब्रानी 10:4 it कहता is है impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. कि बैलों को और गायों का जो लहू है उनका पाप का निकालना नामुमकिन है। So it was just a temporary covering. तो वो थोड़े समय के लिए एक ढाकना था, प्रबंध था। So God was waiting for the Lord Jesus to come. तो परमेश्वर इंतजार कर रहा था हमारे प्रभु यीशु के आने का।
So when the fullness of time came, तो इसलिए जब सही समय आया, Jesus came on the scene यीशु इस धरती पे आए and he did the one final blood sacrifice और उसने आखिरी का अंतिम लहू का बलिदान चुकाया for mankind's sin, मानव जाति के पापों के लिए, which only once, और ये केवल एक ही बार, and he finished it forever. और सदा के लिए उसने काम पूरा कर दिया। Amen. आमेन। You know, the blood of Jesus is very precious. और यीशु का लहू बहुत ही अनमोल है, The Bible says it. और बाइबल ये कहती है, I want to read to you one. You can read it in 1 Peter, एक पत्रस में हम इसे पढ़ सकते where हैं, it says the blood of Jesus is very precious. जहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू बहुत ही अनमोल है। You read in 1 Peter 1:18 to 19. एक पत्रस 1:18 और 19 में हम पढ़ेंगे, We are not redeemed by silver and gold, कि सोने और चांदी से हमें नहीं but छुड़ाया by गया, the precious blood of Jesus, पर यीशु के मूल्यवान लहू से, the blood of Christ. यीशु मसीह के लहू God से। calls the blood of Jesus precious. और परमेश्वर मसीह के लहू को बहुमूल्य कहता है। You'll not know how precious it is आप नहीं जानेंगे ये कितना बहुमूल्य या कितना unless you know अनमोल some है, of the things. जब तक आप कुछ दूसरी बातों को You नहीं know, जानते। it is impossible to put a value on the blood of Jesus यीशु के लहू का मोल लगाना नामुमकिन है unless you know जब तक आप जानेंगे नहीं that it's because of sin. कि ये पाप के कारण लहू बहाया है। I don't know whether or not you can realize मैं नहीं जानता कि आप इसे समझ how पाएंगे या नहीं, precious our health is कि हमारी अच्छी सेहत कितना अनमोल है। until you get sick. जब तक आप बीमार नहीं होते आपको पता नहीं चलता कि अच्छी सेहत के मायने क्या है। Amen. Amen. When you become sick, और जब आप बीमार हो जाते हैं then you know the value of good health. तब आपको अच्छी सेहत का अनमोल समझ में आता है। Till that time you don't know it. तब तक कोई इस बात को ज्यादा You may ध्यान नहीं not give देता it so है, much importance. आप तब तक कोई भी इसको ज्यादा महत्व नहीं देता So है। I don't know whether or not you can realize how precious it is to live without pain until you suffer pain. तो जब तक हम उस दर्द से गुजरते नहीं तब तक वो दर्द का मोल क्या है कोई भी नहीं जानता है। Amen. Amen. Then we know तब आप what जानते is हैं to live without pain. कि दर्द के बगैर जीना कितनी अच्छी बात है, क्या है, तभी समझ में In the आता same है। way, इसी तरह you can't realize how precious the food is until you suffer hunger. और जब तक भूख नहीं लगती तब तक आपको उस खाने का महत्व समझ में नहीं आता। Amen. आमीन। अगर पेट भरा है उधर कितना भी खाना रहो तो उसको भाव नहीं देगा, फेंक देगा, मगर भूख लगा वही खाना को ढूंढेंगे हम लोग को मालूम पड़ता है दिस इज सो वैल्यूएबल। तब हमें समझ में आता है ये खाना का मोल क्या है, कीमत क्या है। हंगर मेक्स फूड प्रेशियस, तो इसलिए हमारी भूख ही उस खाने को कीमती बनाती है, लाइक थर्स्ट मेक्स वाटर प्रेशियस। जैसे प्यास पानी को कीमती बनाती है। When you're not thirsty, और जब आपको प्यास नहीं you लगता throw away that water तो bottle. वो पानी के बोतल को आप फेंक देते हैं, कुछ केयर नहीं करता। आपको But वो when कोई you're मायने नहीं thirsty, रखता। पर जब आपको प्यास लगती है you will realize तब आपको एहसास होता the है value of that water. कि उस थोड़े से पानी की कीमत भी क्या है, तभी पता चलता The है। same way, इसी तरह poverty makes riches precious. और गरीबी अमीरी को ज्यादा मोल बनाती In the है। same way, इसी तरह sin makes the blood of Jesus very precious. पाप भी यीशु के लहू को अनमोल बनाता है। Amen. आमीन। It is sin ये पाप ही है that makes the blood of Jesus very, very precious. जो प्रभु यीशु के लहू को बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य और अनमोल बनाता Because it है, has the redeeming power. क्योंकि उसके अंदर ही छुड़ाने वाली सामर्थ है। The Bible says, without shedding of blood, there is no remission. बाइबल कहती है कि लहू के बहाए बगैर पापों की क्षमा बिल्कुल नहीं है। Remission and forgiveness is different. और क्षमा और उसको पूरी तरह रद्द करना ये दो अलग बात है। I'll teach you that too. मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। So, without shedding of blood, there is no remission. और लहू बहाए बगैर आपकी पापों की रद्द नहीं की जा सकती। And the Lord has purchased us with His own blood. और परमेश्वर ने अपने खुद के लहू से हमें खरीदा So है। when Jesus offered once for all, तो इसलिए जब यीशु ने ये बलिदान सदा के लिए shedding चुकाया, His own blood, अपने खुद के लहू को बहाकर He brought the temporary old covenant, He nullified it. तो जो पुराने करार के थोड़े समय के प्रबंध होते थे उसको And उसने रद्द कर दिया, Inaugurated the new covenant as the eternal covenant. और फिर जो नया उसने करार किया वो ही उसने सनातन का करार बना दिया। We don't go back there. अब दोबारा हमें पुराने दिनों में नहीं Because that जाना was है, just a shadow. क्योंकि वो केवल एक परछाई थी। We are living in the reality. हम हकीकत में असलियत में जी रहे हैं। Amen. Amen. But that time it was important. पर उस समय वो जरूरी था। As a child,
एक बच्चे होने waiting for the जैसा father जो पिता का इंतजार कर रहा है in his house अपने घर when पर, he hears the motorcycle. और जब वो पिता की गाड़ी की आवाज सुनता Oh, है, father is come, daddy is come, daddy is पिताजी come. आ गए, डैडी आ गए, हाँ? खुश होता है। When the daddy enters, और जब पिताजी अंदर he आते हैं forgets that noise of that two-wheeler तो वो गाड़ी की आवाज को वो भूल जाता है, because that was important that time. और वो तब के लिए जरूरी था। But now the daddy, as the reality is here, पर अब तो डैडी हकीकत में उसके सामने है। in the same way, उसी तरह the old covenant was a shadow और जो पुराना करार था वो एक परछाई थी, and Jesus is the reality. और यीशु असलियत है, हकीकत है। Amen. Amen. So we are living under the new covenant of इसलिए हम grace. इस कृपा के नए करार के नीचे जी रहे The हैं, shedding of blood of Jesus brought grace, और यीशु के लहू के बहाने से ही कृपा आई, which is God's blessing for mankind. जो कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का एक आशीर्वाद है। You know, though God is loving, इसके बावजूद परमेश्वर प्रेम से भरा but है, remember God is also just and holy. पर याद रखिए कि परमेश्वर पवित्र भी है और न्यायी भी है। So that's why sin becomes the greatest obstacle for God. इसलिए पाप जो है परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा एक अड़चन बन गया, You know, sin separated us from God. और पाप ने ही हमें परमेश्वर से अलग The कर Bible दिया। says sin brought spiritual death. और बाइबल कहती है कि पाप ही आत्मिक मरण लेके आया। Many don't know what is death. अब बहुत से लोग नहीं जानते कि मरण या मौत क्या है, I wrote a book on death. और मैंने मौत के ऊपर एक किताब लिखी है, It's a very thick book. और बहुत ही मोटा किताब है। You know, there I wrote the three kinds of death. और वहाँ मैंने तीन प्रकार के मृत्यु के बारे में लिखा है, Spiritual death, आत्मिक मृत्यु, physical death, शारीरिक मृत्यु eternal death. और सनातन का So मृत्यु। we must know all तो this. हमें ये सारी बातें जाननी है। First death is spiritual. पहला जो मृत्यु है वो आत्मिक That मृत्यु is है, separation of our spirit soul from God and heaven जो कि हमारा आत्मा और प्राण स्वर्ग और परमेश्वर से अलग हो जाता है forever हमेशा के लिए, unto the devil and hell. तब तक जब तक शैतान और नरक के लिए। The physical death is a separation from a spirit and soul from a body. और शारीरिक मरण जो है ये हमारे आत्मा और प्राण का अलगाव हमारे शरीर से है, And eternal death is the worst. और सनातन का मौत तो सबसे बदतर है, Because hell is not the finality. क्योंकि नरक जो है वो आखिर नहीं है। No, नहीं, the lake of fire is the finality. अग्नि का सरोवर या आग की नदी जो है वो आखिर की है, Because every person once is judged. क्योंकि हर एक व्यक्ति का जब न्याय होगा, Those who are in hell, जो कि नरक में है, they'll also be judged उनका भी न्याय किया जाएगा based on what kind of evil they did, उसके आधार पे जो भी बुराई उन्होंने की है उसके अनुसार, big or small. चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, Accordingly, they'll be punished in the lake of fire. और उसी के forever. अनुसार उन्हें आग के सरोवर में न्याय किया जाएगा, Hell will be thrown into the lake of fire और नरक को इस अग्नि के सरोवर में फेंका जाएगा, and sealed forever. और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। Amen. आमीन। There'll be time in heaven और एक ऐसा समय आएगा स्वर्ग where में a few thought of this will be there, जहाँ पे इन बातों का थोड़ा सा विचार होगा, but once it is locked, पर एक बार जब उस पे ताला लगा दिया जाएगा and a father will just throw it off, और पिता उसे हमेशा के लिए फेंक देगा, locked forever. हमेशा हमेशा के लिए उसे And लॉक he'll करके remove फेंक देगा, every thought of all this और इन सारे बातों की सोच और विचार भी निकाल from the देगा, minds of all those who are citizens of heaven. और जो स्वर्ग के वासी होंगे उनके मन से ये सारी बातों का विचार पिताजी निकाल देगा, Hello. So that you'll never feel sad for anyone. ताकि आपको कभी भी किसी के लिए दुख महसूस ना हो। I wrote all this in my book. और मैंने ये सारी बातें अपने किताब में That लिखी Holy थी, Spirit gave me all those और revelations. पवित्र आत्मा ने मुझे ये सारा But I वचन का didn't प्रकाश bring them दिया, out. पर मैं ये किताब को बाहर नहीं निकाल I've पाया, written many books, और मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है, but I have no time पर मेरे पास समय नहीं है to rewrite and bring it, checking this, that. ताकि मैं उसे चेक करूं, तपासूं और दोबारा उसको पब्लिश के लिए दूं। You know, there was a time I would do all that. और एक समय था जब मैं ये सब कुछ करता When था, I wrote the book on heaven, hell, Katamba, many books I wrote. और जब मैंने स्वर्ग, नर, कटम्बा, इन सारी किताबें जो मैंने लिखी, Till today, many are asking for Katamba. और आज तक कटम्बा इस बुक के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, Many write to me. बहुत से लोग मुझे लिखते भी I हैं, don't answer them. पर मैं उनका जवाब नहीं देता। I wrote about heaven. मैंने स्वर्ग के I wrote ऊपर about किताब marriage. लिखी और विवाह के ऊपर किताब लिखी, Many books I've written. बहुत Okay. सारी किताबें मैंने But after लिखी that, हैं। the Holy Spirit did not lead me, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया नहीं, and so I stopped. और इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया। So it's there at home. तो ये सारी किताबें घर पे Okay. है। I know. Okay. So God is loving and also just. तो परमेश्वर प्रेमालु है और न्याय भी है।
And because he has no sin, or there is no sin in him, और क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं है, the biggest obstacle is sin. और सबसे बड़ा अड़चन हमारे बीच में पाप ही Sin है। does not mean just the deeds. और पाप का मतलब केवल जो काम करते वो ही नहीं, You know, there is the singular sin and the plural sins. और एक वचन पाप है और बहुवचन पाप भी है, जो बहुत सारे पाप है। The deeds of sin are because of the sin nature. और ये जो पाप के काम होते हैं, ये हमारे पाप के स्वभाव के कारण होता है। We do the deeds of sin because of the sin nature, which is the root of all sin. हम पाप भरे काम हमारे पापी स्वभाव के कारण करते हैं, जो कि सारे पाप का जड़ है। Religions can solve your deed problem to such limit. और जो धर्म है, ये कामों का जो परेशानी है, इसे कुछ हद तक सुलझा सकता है। The deeds of sin. जो पाप के काम है उसके, You know, most of the religions are good. और बहुत सारे धर्म जो है वो अच्छे हैं। Leaving aside some religions which teaches violence. कुछ धर्म को छोड़ के जो हमें हिंसा के बारे में सिखाते हैं, Other बाकी है, religions are good. बाकी धर्म जो है They अच्छे tell you हैं। don't tell lies, वो don't कहते give हैं bad झूठ मत words, बोलो, गालियां don't मत drink, दो, don't smoke. शराब मत पियो, धूम्रपान मत करो। But that's just temporary. पर वो थोड़े समय के लिए ही It है। will not solve the sin nature problem. और जो पाप के स्वभाव की तकलीफें हैं, उसे वो हल नहीं करती। Amen. आमीन। You will still have that sin nature. फिर भी वो पाप का स्वभाव आपके अंदर होगा ही। You may stop drinking आप हो सकता है शराब पीना बंद कर because दें, of the fear of religion, क्योंकि धर्म के डर के कारण ऐसा but करते the हैं। desire is still there पर वो इच्छा फिर भी आपके मन में होगी, because you have the sin nature. क्योंकि आपके अंदर वो पाप का स्वभाव है। That's why Jesus came, और इसलिए तो यीशु आए, to change that sin nature ताकि वो पाप के स्वभाव को ही बदल डाले and give us a new nature और हमें एक नया स्वभाव दे, that is God's life जो कि परमेश्वर का जीवन है and God's nature in और it. परमेश्वर का स्वभाव उसमें है। Amen. Amen. That's why when we become born again, इसलिए जब आपका नया जन्म होता है, we are new. हम नए बन जाते हैं Nothing of the old nature is there. और पुराने स्वभाव की कोई बात हम में नहीं We रहती। are just new, हम पूरी तरह नए बन जाते हैं, born again, नया जन्म होता है and we start our life with the life of God. और हम अपना ये नया जीवन परमेश्वर के जीवन के साथ शुरू करते हैं। Don't forget that. ये बात मत भूलिए, We started our life with the life of God, हम ये जीवन की शुरुआत परमेश्वर के जीवन के साथ with the करते हैं, nature of God, परमेश्वर के स्वभाव के साथ करते हैं, where there is no sin in you. और तब आपके अंदर कोई पाप नहीं होता है। Amen. आमीन। Your spirit has the life of God. आपके आत्मा के अंदर परमेश्वर का जीवन the होता nature है, of God. परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। There is no sin there. अब वहां पे कोई पाप नहीं होता। Amen. Amen. You are a spirit. आप एक आत्मा है, There is no sin there. अब वहां पे कोई पाप नहीं है। Once we learn this, एक बात हम ये सीख ले, you will see even the fruit तो of that new nature. तो इस नए स्वभाव के फल को आप अपने अंदर देखेंगे। Okay. So, but in God, in His kindness तो and grace, परमेश्वर उसकी कृपा में, though we were sinners, इसके बावजूद हम पापी थे, He loved us. उसने हमसे बेहद प्रेम किया, But in His justice, पर उसके न्याय में He can't sweep away sins. वो पाप को यूं ही ढकेल नहीं See, सकता। no one can forgive you देखिए, कोई भी आपको क्षमा नहीं कर सकता, because sin has to be paid for, क्योंकि पाप की कीमत भरनी है and no one has paid for sin और पाप के लिए किसी ने कीमत नहीं भरी है, except Jesus. केवल यीशु ने ही पाप की He कीमत took the भरी है। punishment, the consequence of sin upon Himself. और पाप के जो परिणाम थे, उसका जो सजा था, उसने अपने ऊपर ले That's लिया, why He is the only savior of the world. और इसीलिए वो एकमात्र इस दुनिया का उद्धार करता है। Amen. Amen. No one can be the savior और दूसरा कोई इस जग का उद्धार करता नहीं बन सकता, because all are sinners. The Bible क्योंकि says बाइबल कहते हैं कि सभी ने पाप किया है। a sinner cannot become their own savior or other savior. और एक पापी, एक व्यक्ति जो खुद पापी है, वो ना खुद का उद्धार कर सकता है या ना दूसरों का उद्धार For कर सकता Jesus है। to be the savior, और यीशु को उद्धार करता there are बनने के many लिए things involved, और बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है, like virgin birth, जैसे एक कुंवारी से जन्म लेना miraculous birth, और चमत्कारिक जन्म हुआ है, without the physical union of the man, और मनुष्य या पुरुष और स्त्री के एक में आने के पहले उसका जन्म because हुआ through है, the seed of man sin enters. क्योंकि इंसान के बीच से ही पाप So God प्रवेश did करता not है। allow that. तो इसलिए प्रभु ने इस बात की इजाजत नहीं दी, That was a great preparation. और उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की He गई had to थी, be born without sin. और यीशु को बिना पाप के जन्म लेना था। So all those who are born तो इसलिए जिनका भी जन्म हुआ है, to the seed of man वो पुरुष के बीच के द्वारा ही are हुआ है, born sinners. और ऐसे जिसका भी जन्म हुआ है वो सारे पापी है। Amen. Amen. Is there anyone ऐसा कोई भी है क्या who is born without the human father? जो बिना मानवीय Without. पिता के जन्मा है? ऐसा कोई है?
ऐसा कोई भी नहीं है कोई भी नहीं और है। कोई भी नहीं हो सकता। Amen. It requires the seed of man. और एक बच्चे के जन्म के लिए एक पुरुष के बीज की जरूरत होती Yeah, है for the conception. ताकि बच्चे का गर्भ धारण हो। That's what Holy Spirit showed me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। Many don't know this. बहुत से लोग इस बात को नहीं So the जानते। sin travels from the seed of man. तो इसलिए पाप उस पुरुष के बीज से ही प्रवेश करता And है no one can skip that. और कोई भी इस बात से आजाद नहीं हो सकता है। So all are sinners. तो इसलिए सभी पापी है, They may be good, चाहे वो अच्छे हो, but the sin nature is there. पर उनके अंदर वो पाप का स्वभाव है ही। Amen. Amen. They may not give bad words. हो सकता है वो They may गालियां not ना दे drink. और हो सकता है वो शराब They may ना not पिए, fight. वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते But होंगे, that sin, this outside goodness cannot change the sin nature. पर ये जो बाहर से उनका जो अच्छापन है ये उनके पाप के स्वभाव को जो अंदर है बदल That's नहीं what the सकता। Bible says. और यही बाइबल All कहती your है righteous deeds are considered as filthy कि rags. तुम्हारे सारे धर्मी काम, अच्छे काम ये गंदे छितड़ों के समान माना जाता Because it है, doesn't help or change the sin nature in you. क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है उसे ना बदल सकती है ना बदलने में मदद कर सकती है। Amen. Amen. That's why God chose this. इसलिए प्रभु ने ये रास्ता चुना That when you believe in Jesus, कि जब आप यीशु पे you विश्वास become करते born हैं again. तो आपका नया जन्म होता है, Born again, नया और दोबारा A जन्म new लेते हैं। birth. एक नया जन्म है which has no past. जिसमें कोई गुजरा कल नहीं है। Your beginning begins with the life of God. आपकी शुरुआत ही परमेश्वर के जीवन के साथ शुरू होती But है, the devil is the one who keeps on reminding of your sin. पर शैतान ऐसा है जो आपको लगातार आपके गुजरे कल के पाप की याद दिलाता है। Amen. So you must know the word. तो इसलिए आपको वचन जानना You can जरूरी hear है। some of the message I spoke in Pimpri today morning. और आज सुबह जो मैंने पिंपरी में कहा वो संदेश भी जरूर सुनिएगा। Yeah. So, God, though we were sinners, He chose to love us, तो हम पापी होने के बावजूद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, but in His justice, पर उसके न्याय में He cannot look away at sin. वो पाप की ओर देख नहीं सकता। So our Father devised a plan तो इसलिए हमारे परमेश्वर ने एक योजना बनाई where He would be just in forgiving mankind's sin. जहाँ वो न्यायी रूप से मनुष्य जाति के पाप को क्षमा कर सकता ऐसे है। नहीं पाप किया ना मैं छुपा देता और मैं बोलता तू पापी नहीं, ऐसा नहीं है। Whatever he did it legally. और जो भी उसने किया वो कानूनी रूप से सही किया। You know, one thing you must know, एक बात आपको जानना जरूरी most है of the words in the Bible are legal. कि बाइबल के जो भी सारे काम है वो सारे कानूनी तौर पे सही है। It's a courtroom language. और ये जैसे एक न्यायाधीश के जो भाषा होती है उसके अनुसार है। Amen. You're justified. कि तुम न्यायी ठहराए गए हो, You're righteous. तुम धर्मी हो, I declare you're not guilty. मैं घोषणा करता हूँ कि तुम दोषी नहीं You हो, are free. तुम आजाद हो गए हो। These are legal terms. देखिए ये सारे कानूनी शब्द है। If you don't know legal terms, अगर आप कानूनी शब्दों को नहीं then जानेंगे the devil can deceive you. तो शैतान आपको फंसा सकता है, Because many walk by feelings. क्योंकि बहुत से लोग भावनाओं के साथ You चलते know, हैं। in legal things, feelings are not counted at all. और जब कानूनी बात आती है तो उसमें ये भावनाएं काम नहीं कर सकती। कुछ काम नहीं आता. When you are standing in the court और जब of आप law, कोर्ट में जज के सामने खड़े the होते judge हैं doesn't look at your feelings. तो वो He says, न्यायाधीश आपके भावनाओं को नहीं देखता है। मैं बिल्कुल गलती नहीं किया, मैं देखो रो रहा हूँ। वो बोलेंगे अरे रो रहा है क्या, ठीक है, ऐसा बोलता है क्या? बोले नहीं। देखो तुम रो दो कुछ भी करो, एविडेंस के मुताबिक तुम गिल्टी है। सबूत के अनुसार तुम दोषी हो। Amen. आमीन। मैं क्या देखता हूँ, लॉ क्या देखता है? एविडेंस। उन्हें सबूत Proof चाहिए, है कानून क्या? को सबूत चाहिए। Amen. आमीन। See, these are legal terms. देखिए ये सारे कानूनी बातें It हैं, has got nothing to do with feelings. इसका आपके भावनाओं के साथ कोई लेना That's what the देना Bible नहीं says. है। You are justified by faith. इसलिए बाइबल कहती है कि तुम विश्वास के By द्वारा न्यायी faith you ठहराए are गए declared हो righteous. और विश्वास के द्वारा ही तुम धर्मी By ठहराए faith गए you are हो, declared forgiven. विश्वास के द्वारा ही तुम क्षमा किए गए हो। There your feelings doesn't work. वहाँ आपकी भावनाएं काम नहीं करती। Amen. आमीन। Whether I feel forgiven or not, I am forgiven. चाहे आपको महसूस हो रहा है कि नहीं कि मुझे क्षमा मिली है कि नहीं, नहीं, हम क्षमा किए गए हैं। I am righteous. मैं धर्मी हूँ, But I don't feel righteous. पर मुझे ऐसे महसूस तो नहीं हो रहा You know, है। many believers walk by feelings. बहुत से विश्वासु जो भावना से चलते हैं। I feel I am going to hell, Pastor. पास्टर मुझे लग रहा है कि मैं नर्क जाने वाला हूँ। What you feel has nothing to do with heaven. आपको क्या महसूस Hello? होता है, क्या लग रहा है, स्वर्ग का उससे कोई लेना देना नहीं है। God says walk by faith. प्रभु कहता है विश्वास से चलो।
not by your feelings. अपने भावनाओं के अनुसार मत चलो। The devil uses feelings. शैतान इन भावनाओं का इस्तेमाल करता है। You're not feeling good, no? तुम्हें अच्छा नहीं लग Right. रहा है ना? That is true. सच बात है। You don't feel like you're going to heaven, no? तुम्हें That's ऐसे true. नहीं लग रहा है ना कि तुम स्वर्ग जा रहे हो? हाँ, यही सही Look है। at this. देखिए, These are legal terms. और ये सारे कानूनी बातें हैं। कोर्ट में तुम्हारा इमोशंस फीलिंग्स बिल्कुल नहीं चलता है। तुम कितना भी रो और जज को भी रोला, लास्ट में जज में मैं रोया है, फिर भी ये कानून के मुताबिक ऐसा है, isn't it? है ना? Okay, I'll show you that. मैं That's आपको- very important part of the story. और इस कहानी का बहुत ही Because अहम I know- हिस्सा है वो। I was teaching one person. और मैं एक व्यक्ति को सिखा रहा था। I don't want to tell the names. मैं नाम नहीं Because लेना many walk by feelings. क्योंकि बहुत से लोग भावनाओं से चलते हैं। I asked him why that brother doesn't come. और मैंने उनसे पूछा कि वो भाई क्यों नहीं आते? He said no, because no, he has some this thing. He has no time. और उन्होंने कहा उनके पास समय नहीं है। I said, why did you respond by emotions? तो मैंने कहा तुमने भावनाओं से जवाब क्यों दिया? You must respond by faith. तुम्हें विश्वास से जवाब देना है। The Bible says you must not forsake assembly. बाइबल कहती है तुम्हें इकट्ठा या जमा होना छोड़ना नहीं है। Amen. Amen. You could respond by faith. तो तुम्हें विश्वास से जवाब When you देना चाहिए respond था। by emotion, you are not helping him. You are driving him away, further away. और जब तुम भावनाओं से उन्हें जवाब देते हैं तो आप उनकी मदद नहीं कर रहे पर उन्हें और पीछे धकेल रहे हैं। I have seen many believers और मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासु walking by emotions. जो भावनाओं के साथ ही चलते क्यों नहीं हैं। आ रहा चर्च को? नहीं, बहुत बिजी। हाँ, हो सकता है, बराबर बराबर। वो बोलता अच्छा, फिर मैं नहीं आएगा आज से। तुमने क्या काम किया? उसको भगा दिया दूर। Are you working for heaven or hell? तो क्या आप नरक के लिए काम कर रहे हैं या स्वर्ग के लिए? The devil uses many people's feelings. और शैतान बहुत से लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करता You know, है। feelings make us live in the good books of people. और ये भावनाएं हमें लोगों के अच्छे नजर में रखती है। Faith may offend many people. और विश्वास के द्वारा बहुत से लोग नाराज हो Suppose when सकते they हैं। come to me समझिए and वो I मेरे ask पास them, आते why हैं not coming to church? और मैंने उनसे पूछा तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे हो? Pastor, टाइम ही नहीं मिलता। उन्होंने ऐसा टाइम जवाब नहीं दिया। मिलता। वचन में लिखने का ना प्रभु कि थोड़े लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, उनको मैं एक्सक्यूज कर देता हूँ। ऐसा नहीं लिखा है। Hebrews 10:25 में लिखा है, do not forsake assembling, it's a command. इब्रानी 10:25 में लिखा है Isn't कि it? जमा होना छोड़ना नहीं है, ये एक आज्ञा है, हुक्म है। And he also said, don't be like the few who don't attend churches. और ऐसे भी लिखा है कि उनके समान मत रहो जो कि चर्च नहीं आते I हैं। know if I say that they will not like it. और मैं जानता हूँ अगर मैंने ऐसे कहा तो उन्हें पसंद नहीं So I आएगा। want to be in good books to them. तो इसलिए मुझे उनसे अच्छे So बने what रहना I say, है। I तो agree मैं with क्या them. कहूँगा, मैं उनके साथ सहमत हो नहीं, जाऊंगा। नहीं, हाँ बराबर हाँ। है, बराबर। टाइम नहीं मिलता आजकल, किसको टाइम मिलता नहीं ना, बराबर। See this. You're advertising for heaven or hell. देखिए आप स्वर्ग के लिए विज्ञापन कर रहे हैं या You नरक के are लिए? more worried about your standing. आप उनके सामने आपका ठहराव You कैसा want है to be उसकी in ज्यादा good परवाह books of करते हैं people. और लोगों के अच्छे नजर में होना चाहते You हैं don't आप। want that people should not like you. आप ऐसा नहीं चाहते कि लोग आपको नापसंद करें। Amen. But I always stand by faith. पर मैं हमेशा विश्वास से ही खड़ा I रहता हूँ। don't care whether they are hurt or not. मैं परवाह नहीं करता वो नाराज हो गए या ना होंगे। Because emotion people cannot help emotional people. क्योंकि भावुक लोग जो दूसरे भावना में बह रहे हैं उनकी मदद नहीं कर सकते। You want faith people to help emotional people. आपको विश्वास से भरे लोग चाहिए जो भावना से भरे लोगों की मदद कर Because the सके। devil always enters in feelings. क्योंकि शैतान हमेशा भावनाओं में अंदर आता है। How you are feeling? क्या तुम्हें कैसे महसूस I'm हो not रहा है? feeling well. नहीं Right? मुझे अच्छा नहीं Correct. लग रहा। Correct है तुम. सही है तुम। Yeah, I don't feel blessed. नहीं मुझे I आशीर्वादित don't महसूस feel नहीं हो रहा healthy. है, मुझे अच्छी सेहत नहीं लग रही है I don't feel forgiven. और मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरी क्षमा हो गई I है। don't feel that God loves me. मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि प्रभु मुझसे प्रेम These करता things, है। your feeling has nothing to do with it. देखिए आपके भावनाओं का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। Amen. Amen. Jesus didn't go by feeling on the cross. और यीशु क्रूस पे भावनाओं में बहकर नहीं गए। If he went by feeling, he would have not gone only. अगर भावनाओं में बह जाते तो फिर वो क्रूस पे जाते ही Because he नहीं। didn't like, his feeling didn't like to suffer and die. क्योंकि उनके भावनाओं को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो इतना पीड़ा उठाए और मर जाए। That's a choice he made पर ये एक खुद का चुनाव यीशु ने किया based on the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान के आधारित That is by faith. कि वो विश्वास से है। Talk by faith, people. और विश्वास से बातें करिए ना लोगों। Amen. आमेन। By faith means talk the word. और विश्वास से बातें करना यानी वचन की बातें करना। Emotional people can never help you. और भावुक लोग कभी आपकी मदद नहीं कर सकते। Amen. Amen. Give the word to them. और वचन दीजिए उन्हें। By your feelings, you will drive them far away. आपके भावनाओं से आप उन्हें और दूर ढकेल देंगे। This is just a teaching. और ये एक शिक्षा है आप सबके लिए। Okay.
So God is a just God. तो परमेश्वर एक न्यायी So परमेश्वर he है, devised a plan तो उसने फिर एक योजना की where he would be just in forgiving mankind's sin. जहाँ वो एकदम न्यायी रूप से मानव जाति के पापों को क्षमा कर That सके, no one can point out a mistake at God. ताकि कोई भी परमेश्वर के ऊपर दोष ना लगाए या उंगली ना When उठाए। he forgives, और जब वो क्षमा करेगा it is righteous वो and just. एकदम धर्मी रूप से और न्यायी रूप से होगा। Amen. आमीन। ऐसा नहीं कि पाप पीछे निकाल दिया, हटा दिया. No, every sin he paid it. और हर एक पाप की कीमत उसने भरी है। Amen. Amen. So he has the right to forgive you. तो इसके पास पूरा हक है कि वो आपको क्षमा कर सके, And you have the right to receive forgiveness of all your sins. और आपके पास भी ये अधिकार है कि आपके सारे पापों की क्षमा आप उससे पा Only सकते because you हैं, believed in Jesus. एक ही कारण की वजह से कि आपने यीशु पे भरोसा किया। Believing in Jesus also means, और यीशु पे विश्वास करना इसका or ये भी also मतलब है, includes, या इसमें ये बात भी शामिल होती all है that he did on the cross कि for वो us. सारी चीजें जो उसने क्रूस पे हमारे लिए की है। Amen. आमीन। जो भी उसने किया, everything is included. सब कुछ इसमें शामिल है। Amen. आमीन। Believing in Jesus is not a small thing. और यीशु पे विश्वास करना एक छोटी बात नहीं है। Every blessing becomes yours. हर एक आशीर्वाद जब आप यीशु पे विश्वास करते तो आपका बन जाता है। It's a package, full package ये पूरी एक पोटली है, एक पूरा पैकेज है, for now and forever. आज के लिए और हमेशा हमेशा के लिए। When Jesus paid for the sin of mankind, और जब यीशु ने मनुष्य जाति के पापों की भरपाई की, he met the righteous demands of God's law. तो परमेश्वर के व्यवस्था या कानून के जो भी जरूरतें थे वो सब कुछ उसने पूरा किया, Because God's law demands क्योंकि परमेश्वर का न्याय मांग that रखता the है, penalty of sin is death. क्योंकि पाप की सजा मौत है। Amen. आमीन। See, you cannot change that. आप इस बात को नहीं बदल सकते, That's God's eternal law और ये परमेश्वर का सनातन का नियम है that requires death for sin. कि पाप के लिए मरना जरूरी है। So what can be done? तो फिर अब क्या किया जा God सकता cannot है? forgive प्रभु तो क्षमा नहीं कर unless सकता that penalty is paid. जब तक कि इस सजा की भरपाई नहीं होती, प्रभु So क्षमा नहीं when कर सकता। Jesus paid the penalty, तो इसलिए जब यीशु ने इस सजा की भरपाई he की, fulfilled the righteous demands of the law. तो जो नियम व्यवस्था के मांगे थे वो सब कुछ यीशु ने सही तरीके से पूरा किया। Amen. आमीन। The law can say nothing to you. अब ये कानून व्यवस्था आपको कुछ नहीं कह When I सकता। say law, I also mean God. जब मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था तो मैं परमेश्वर भी उसमें कहता Because हूँ, God has brought that law क्योंकि परमेश्वर ने ही ये कानून according लेके to आए his nature, अपने स्वभाव के अनुसार, holy and righteous nature. जो कि पवित्र और धर्मी स्वभाव So है। the law is holy तो इसलिए जो नियम है वो पवित्र It's है, good. वो अच्छा है, because it's God's law. क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। Amen. Amen. Even it applies to God himself. और ये परमेश्वर खुद उसके ऊपर भी लागू करता He है, cannot break it. और प्रभु इसे खुद तोड़ नहीं सकता। So Jesus fulfilled the law of God. तो यीशु ने परमेश्वर के इन सारे नियमों को पूरा किया। Amen. Amen. And when you believed in Jesus, और जब हमने यीशु पे विश्वास किया, God will, God has to forgive us. परमेश्वर को हमें क्षमा करना ही पड़ेगा और उसने हमें क्षमा कर दिया है। Amen. आमीन। That's the power in the blood of Jesus. और यही सामर्थ्य यीशु के लहू में। So the just demands of law is death तो इसलिए for a न्याय, sinner. एक पापी का मरना जरूरी है न्याय But के Jesus अनुसार, dying on the cross पर यीशु का क्रूस पे मरना gave us life. हमें जीवन देता है। That's what the Bible says in Romans 5:9. और यही बाइबल कहता है रोमी Now 5:9 we are में justified by his blood, कि अब उसके लहू से तुम न्यायी ठहराए गए हो, declared righteous, तुम्हें धर्मी घोषित कर दिया गया whether है, you feel or not. चाहे आपको वो महसूस हो या ना हो। Why I'm saying again? Because many Christians walk by feelings. मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे विश्वासु केवल भावनाओं के साथ ही चलते हैं I don't feel forgiven. कि मुझे ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मुझे क्षमा किया गया है। Hello, you're insulting God. आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं ऐसे कह के। Why are you doubting God? आप परमेश्वर पे क्यों शक करते हैं? You're justified not by your feeling but by faith. आपके भावनाओं से आप न्यायी नहीं ठहराए हैं, पर आपके विश्वास Which से आप means न्यायी whether ठहरे you हैं। feel or not, इसका मतलब चाहे आपको महसूस हो You या ना are हो, forgiven. आपको क्षमा कर दिया गया है। amen. आमीन। Because the devil will enter the feeling, you are क्यों- not forgiven. क्योंकि शैतान आपकी भावनाओं में प्रवेश करेगा और बोलेगा नहीं नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा है, Because you're walking by feeling. क्योंकि आप भावनाओं से चलते हैं। That's why many Christians are not happy. और इसलिए बहुत से मसीह उदास है, They have that fear because they walk by feelings. क्योंकि उनके अंदर वो डर है, क्योंकि वो भावनाओं से So चलते हैं। much of the words I've seen is the courtroom language. तो इसलिए जो भी ज्यादातर शब्द मैंने देखे हैं जो कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है वो कानूनी शब्द है। You must know that. आपको ये सारी बातें You जाननी know, है। many messages are
of daya maya messages. और बहुत सारे संदेश दया के ऊपर So होते हैं, people walk by emotions. तो लोग फिर भावनाओं में ही बहते हैं। This is the problem with Christians. और यही मसीहों के साथ परेशानी They walk है by feelings. कि वो भावनाओं से चलते हैं। You know, for example, उदाहरण के लिए in the court, कोर्ट में there is the prosecution, there is the defense. और जो वकील है जो साथ में रहता है और एक दूसरा है जो दोष लगाता You know, है, the prosecution is the one who accuses of crime, that you're guilty. और जो विरोधी वकील होता है वो दोष लगाता है कि तुम दोषी हो। Sin says you're guilty. पाप कहता है कि तुम दोषी हो, But the defense पर जो बचाने वाला वकील brings है evidence and not guilty. वो सबूत लेके आता है और कहता है कि नहीं ये दोषी नहीं है। So each of these cases presented तो फिर दोनों ही अपने मामले को सामने रखते before the हैं, judge. जज के न्यायाधीश के सामने And रखते the हैं, judge has to make a declaration, और फिर न्यायाधीश को एक घोषणा करनी होती है, not based on the feelings, और उसकी भावनाओं के आधार पे नहीं, based on the evidence. पर जो सबूत दिखाया जाता है उसके आधार पे। Amen. Amen. Feelings has no place in the court of law. और इस व्यवस्था कानून के कोर्ट में भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है, काम ही नहीं है कुछ। Amen. Amen. When the judge declares और जब न्यायाधीश घोषणा either करता है righteous कि मैं धर्मी हूँ or guilty, या तुम दोषी नहीं हो, that's the end. तो समाप्त, बात वहीं खत्म हो जाती है। And because of Jesus, और यीशु के कारण we have been declared righteous. हमें धर्मी घोषित कर दिया गया है। Amen. Amen. Because of the blood of Jesus, यीशु के लहू के कारण the highest judge, अब सबसे उच्च न्यायाधीश that is God, जो कि परमेश्वर has है, declared उसने घोषणा कर दिया है not guilty, कि तुम दोषी नहीं हो, righteous, तुम धर्मी हो, you are free. तुम आजाद हो। Hello. हालेलुया। तुम क्या करता? फ्री। अरे तुम उदास क्यों? ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है मेरे को, मैं फ्री हूं। मेरे को लग रहा नहीं है ऐसा। तुमको कौन पूछता लग रहा क्या नहीं? वो जज बोला तुम फ्री है तो जाओ ना। हा? नहीं नहीं, मेरे को ना वापस जेल में लेके जाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा नहीं है मेरे को। Some people go back. और कुछ लोग दोबारा जेल में जाते हैं। See this. देखिए, Most of the Christians are walking by emotions. और ज्यादातर मसीह जो है वो भावनाओं से ही चलते You know, हैं। I give the message now, और अभी मैंने संदेश and दिया I hear some people talking. और मैं सुनता हूँ कुछ लोग बातें कर रहे Then हैं, I ask them, अरे अभी मैसेज दिया ना मैंने, क्या सुना तुम? See this. देखिए, Many are walking by feelings. और बहुत से लोग भावनाओं से ही चलते हैं। When the judge has pronounced और जब जज ने कह दिया है not guilty, कि तुम दोषी नहीं हो, who are you to have any feeling and say, no, I feel this, I feel that? तो फिर आप कौन होते हो जो भावनाओं को उसमें जोड़ के बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है मैं दोषी नहीं हूँ। That's why many Christians और इसीलिए are बहुत not सारे happy. इसलिए बहुत सारे मसीह खुश नहीं है, उदासी रहते उन हैं। लोग को लॉर्ड ने फ्री कर दिया है, हाँ? नहीं तो जाते जेल फॉरएवर, हमेशा के लिए, नहीं तो जेल में बंद रहते। फ्री कर दिया प्रभु ने, और फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा नहीं है पास्टर। Walk by faith. विश्वास से चलिए। Amen. Amen. Walk by faith. विश्वास से चलिए। That's why for many I will tell them, don't cry. इसलिए बहुत से लोगों को मुझे कहना पड़ता है रो मत। I know they don't like me saying that. मैं जानता हूँ उन्हें because पसंद नहीं आता they जब मैं like ऐसे the कहता हूँ, pastors who also will cry with क्योंकि them. उन्हें वो पास्टर अच्छे लगते हैं जो उनके साथ में रोते हैं। Pastor will also cry, they will also cry. पास्टर भी रोएंगे, वो भी किती रोएंगे। छान पास्टर आहे, हाँ? तो पण रडला माझ्यासारखा, हाँ? वो रडला, तुम रडला, दोनों को एक दूसरे को बाहर निकाल नहीं सका। Only faith in line with God's word can remove you out. केवल विश्वास जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है आपको बाहर निकाल When you सकता है। talk faith, they won't like you. पर जब आप विश्वास से उनसे बातें करेंगे तो वो आपको पसंद नहीं Remember करेंगे। that. ये बात भी याद रखिए। When you talk feelings, they will like you. जब आप उनके भावनाओं के साथ मिलकर बातें करेंगे तब आप उनको That's अच्छे why लगेंगे। Christians always mix up with emotional people. इसलिए जो मसीह है वो हमेशा भावुक लोगों के साथ ही मिलते जुलते हैं। Brother, sister, तुम ही सिर्फ समझ सकते हो, हाँ? हाँ, केवल तुम ही समझ सका। देखो तुम रोया है ना, फीलिंग आ गया क्या? नहीं, तुम ही समझता है, वो पास्टर नहीं समझता है, वो बोलता रो मत, ऐसे थोड़ी होता है। They can't help you. और फिर ये लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। Remember that. याद रखिए इस What बात does को। God say? प्रभु ने क्या कहा? Walk by, say it to बोलिए, yourself. अपने आप को Walk बोलिए। by faith, विश्वास से चलो, not by sense. अपने इंद्रियों से नहीं,
या अपने इंद्रियों के मदद से Or मत चलिए feelings. या भावनाओं की मदद से मत चलिए। I'm not against emotions, मैं आपके भावनाओं के खिलाफ नहीं but we हूँ, love negative emotions. पर नकारती भावनाओं के हमें प्रेम है, रोना फर्स्ट आता है, हंसने का लास्ट, isn't it? है ना? सबसे पहले रोना Emotions शुरू करते हैं। में which one we use the maximum? भावनाओं में सबसे ज्यादा कौन से भावना का इस्तेमाल करते हैं? रोना फर्स्ट। रोना सबसे पहले फिर आता दूसरा है। क्या है? दुख। दुख, हाँ? उदास मुझसे रहना, नहीं बात करता पास्टर। अच्छा, ओके, सेल्फ पिटी, अपने आप को बेचारा ये बनाना, सब हाईएस्ट में रखा है हम लोग। और लास्ट जॉय, लास्ट, और आनंद को या खुशी को सबसे आखिर में रखा है isn't it? है ना? Now we must change that. अब हमें इन बातों को बदलना है। Amen. Amen. The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। हमारी ताकत है। Amen. Amen. आमेन। It will free you from sickness and disease. और आपकी बीमारी रोगों से यही आपको आजाद The करेगा। devil has no place when you're walking by faith. और जब आप विश्वास से चलते हैं तो शैतान को आपके जीवन में कोई जगह नहीं He मिलता। loves people those who walk by emotions. वो उनसे प्रेम करता है जो लोग भावना से चलते हैं, He keeps on speaking to you. और वो आप लगातार आपसे बातें करते रहता है। देखो तुम्हारा लाइफ, हाँ ना, कोई नहीं पूछता, हाँ ना, कोई नहीं पूछता, सब लोग सदा ऐसे। देखिए, He keeps on talking to you. वो लगातार आपसे नकारती बातें But कहता when you are रहता in है। faith, पर जब आप विश्वास से चलते अरे हैं, कुछ नहीं होता है। आप कहेंगे कुछ नहीं वो होता तो है। दूर रहेगा, उधर तुम्हारा नजदीक भी नहीं आएगा। आमेन। ये फेथ से चलने वाला है, इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कितना भी बोलो उसको, वो उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, वो बोलता है अरे बोल लेता, क्या होता, कुछ नहीं होता, इससे क्या बात करने का, छोड़ो इसको। जो जल्दी हर्ट हो जाता है उसके पीछे जाओ, हाँ ये अच्छा है इसको बोलो, ये बहुत फीलिंग से चलता है। हेलो, आर यू सेइंग दिस? आप देख रहे हैं इन बातों को? सो गॉड सेज यू आर नॉट गिल्टी। तो प्रभु कहता है कि तुम दोषी नहीं हो। Those of faith in Jesus are declared righteous, और जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है वो धर्मी है, निर्दोष है। not guilty. वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं Romans है। 4:25 says, रोमी 4:25 कहता है Jesus was delivered on account of our transgression, कि हमारे पापों के कारण यीशु को छुड़ाया गया but था, was raised for our justification. पर हमारे न्याय ठहराए जाने के लिए उसे उठाया गया था। Amen. Amen. We are justified by our faith, not feeling. और हम अपने भावनाओं से न्यायी नहीं ठहरे हैं, पर हमारे विश्वास के द्वारा It न्यायी ठहरे means हैं। you are declared righteous and holy इसका by faith. इसका मतलब आपके विश्वास के द्वारा ही आप न्यायी और पवित्र ठहराए गए हैं, Whether you feel or not. चाहे आपको ऐसा महसूस हो या ना हो। Heaven doesn't care about it. स्वर्ग इस बात की परवाह नहीं करता। Amen. आमेन। It cares only about faith. वो केवल विश्वास को ही देखता है। I may not feel it, मुझे चाहे ऐसा महसूस ना हो, but I walk by faith. पर फिर भी मैं विश्वास से चलता हूँ। Amen. Amen. So decide to walk by faith. तो इसलिए तय करिए, निर्णय लीजिए कि आप विश्वास से ही चलेंगे। What does justification mean? अब न्याय होना मतलब क्या है? You're justified by faith. कि आपको विश्वास से न्यायी ठहराया गया Means है। you're not charged with any sin. इसका मतलब पाप का कोई भी दोष अब आप पर नहीं है। You're acquitted. अब आप उससे शुद्ध You are किए गए declared हैं। righteous. आपको धर्मी घोषित कर दिया गया There's no है। condemnation for you. अब कोई दंड आज्ञा नहीं है आपके लिए। Amen. आमेन। The new creation man in you, that is you, और जो नई सृष्टि का व्यक्ति आपके अंदर जो है वो आप खुद है। has no sin उसके अंदर कोई पाप नहीं है, because you're born again क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। and you have no past of sins at all. और पाप का कोई भी गुजरा कल अभी आप में नहीं है। Now look at Acts 13, अब प्रेरितों के काम 13 की ओर देखिए 38 onwards. और 30वें वचन के We are justified from all things कि सारे बातों से हम न्यायी ठहराए गए from हैं, which we could not be justified by the law of Moses. जो मूसा के कानून के अनुसार हम न्यायी नहीं Look ठहरा at जा this. सकते थे, Which we couldn't be justified by the old covenant. कि जो पुराने करार है उसके द्वारा हम न्यायी नहीं ठहराए जा सकते Many थे। Christians are still walking by the old covenant और mentality. बहुत से जो मसीह है अभी भी पुराने करार के व्यवस्था के अनुसार ही चल रहे हैं। So our sins are remitted means which are removed totally. इसलिए We are हमारे free. पापों को रद्द कर दिया गया है, मतलब वो हमेशा के लिए पूरी तरह निकाल दिया गया है। This also means there is no record of your sins. इसका मतलब आपके पाप का कोई रिकॉर्ड या लेखा भी नहीं है, That's the meaning of remission. और इसी का मतलब है रद्द कर देना। It's not that forgiveness means just pardon of your sins, but it is remission means there's no record. और पाप की क्षमा यानी आपके पापों की माफी ही नहीं की गई है, पर उसका कोई लेखा कोई हिसाब किताब ही नहीं है। Not guilty in spite of your sins. आप पाप करने के बावजूद निर्दोष है। Amen. आमेन।
You know, that's why whenever I think about Jesus, और इसलिए जब भी मैं यीशु के बारे में many सोचता हूँ, times I have tears in my eyes बहुत से समय मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। because of Jesus. यीशु के कारण I am declared righteous, मुझे धर्मी घोषित कर दिया गया है, whether I feel it or not. चाहे मुझे ऐसा लगे, महसूस So हो I या ना हो। don't live in condemnation. इसलिए मैं दंड आज्ञा में नहीं जीता हूँ। I don't walk with the conscience of sin. मैं पाप के भावना या जागृति में नहीं चलता। I may feel like that, मुझे शायद ऐसा महसूस हो, but I walk by faith पर मैं विश्वास से ही चलता because हूँ, God has declared me righteous. क्योंकि प्रभु ने घोषणा कर दिया है कि मैं धर्मी हूँ। Whether anyone says it or not चाहे about कोई me, कहे या ना कहे मेरे बारे में whether I ऐसा, feel it or not, चाहे मुझे वो महसूस हो या ना हो, God, the righteous and holy, the highest judge, told me, प्रभु जो उच्च न्यायालय है, जो पवित्र है, जो खुद न्यायी है, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया you है are justified by your believing in कि Jesus. यीशु पे विश्वास करने से तुम न्यायी ठहराए गए हो। Amen. I Amen. have no charges against me. अब मेरे खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं है। I am innocent of any crime, अब किसी भी खून या किसी भी दोष से of मैं any निर्दोष हूँ, wrongdoing. किसी भी गलत काम के से मैं निर्दोष ठहराया गया हूँ। Amen. आमेन। That should be your faith. और यही आपका भी विश्वास होना चाहिए। Because many don't have this faith, और क्योंकि बहुत से लोगों में they are ऐसा walking विश्वास in नहीं है, condemnation, तो वो दंड आज्ञा में चल रहे हैं, guilt feeling. दोष भावना लेके fear, चल रहे हैं, डर में चल रहे हैं, judgment. न्याय में चल रहे That's why हैं, they're not blessed. और इसीलिए वे आशीर्वादित नहीं होते। Amen. आमेन। Faith will free you from all this. और विश्वास आपको इन सारी बातों से आजाद करेगा। Okay, we'll go a little further because I और don't थोड़ा know आगे whether we have देखेंगे। time. Okay. So now, since you are born again, तो अब जो आपका नया जन्म हो गया you are है, not that same person अब वो पुराने व्यक्ति नहीं रहे आप, that was born of your biological parents. जो अपने माता पिता, जो खून से माता पिता से जन्मे हैं, उनके तरह नहीं है। Don't connect yourself there now. अब अपने आप को वहां मत जोड़िए। That's the old man वो पुराना व्यक्ति था having the nature of sin. जिसके अंदर पाप का स्वभाव था, That old man died in Christ. पर वो पुराना व्यक्ति मसीह में मर गया। And now the new you is there. अब एक नए आप आ गए हैं। Amen. आमेन। Now you are the new you, अब आप जो है वो एक नए आप हो, आप पुराने व्यक्ति which नहीं has है, no past. जिसका कोई भी गुजराकल या भूतकाल नहीं है। Amen. आमेन। When did you begin? कब आपने ये शुरुआत की? By whose life did you begin? किसके जीवन से आपने By शुरुआत whose की? nature did you begin? या किसके स्वभाव से आपने इस बात की शुरुआत की? When you believed in Jesus, जब आपने यीशु पे you विश्वास became किया, born again, तो आपका दोबारा जन्म हो गया, having no past. जिसका कोई भी गुजराकल नहीं है, You started your life with God, और आपने अपना जीवन प्रभु के साथ शुरू with the किया, nature of God, प्रभु के स्वभाव के साथ शुरू and किया, there is no past sin at all. और उसमें आपके गुजरे कल का कोई भी पाप शामिल नहीं है। Like a baby जैसे एक बच्चा that is born, जो कि अभी नया जन्मा does it है, have any past? उसका कोई कल नहीं होता है, No past. उसका कोई भी भूतकाल या कोई Just भी गुजरा कल new. नहीं है, वो एकदम नया है, अभी जस्ट जन्मा है। अभी तक कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं उसका पास्ट, नया है। Amen. आमेन। ऐसा ही तुम हो। आमेन। You became born again. आपका भी नया जन्म हुआ है। Amen. आमेन। You have the new nature. अब आपके अंदर ये नया स्वभाव है। Though maybe you're doing some deeds of sin, हो सकता है कुछ पाप के काम आप अभी भी करते but होंगे, as a new you, पर एक नया व्यक्ति जो you are आप अभी बने sealed हैं, by Holy Spirit, पवित्र आत्मा का आप पे मोहर लग which गया है, cannot be tarnished by any sin. जो किसी भी पाप से निकाला नहीं जा सकता। Amen. Know this आमेन। well. ये बात अच्छे से जान लीजिए। Then only you can live a joyful, successful, and blessed life. और तभी एक आप आनंद से भरा, सफल से भरा और यशस्वी जीवन जी सकते That's the हैं। way I live. और मैं भी ऐसे ही जीवन जीता I हूँ। walk by faith. मैं विश्वास से ही चलता हूँ। Amen. आमेन। That's why I'm always joyful. और इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, I don't feel condemned. और मुझे दोष नहीं लगता है मन में, Never. कभी भी नहीं। That's why you must walk by faith, not walk by feelings. और इसलिए आपको विश्वास से चलना है, भावनाओं से, एहसासों से नहीं। You may feel not good, आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, but who cares for the feeling? पर अपने भावनाओं की कौन परवाह करता है? By faith, विश्वास से I am good. मैं अच्छा हूँ, एकदम सही हूँ। Amen. आमेन। Whether you feel it or not. चाहे आपको महसूस हो या ना हो, सुबह उठा तुमको अच्छा नहीं लगा, वो कौन केयर करता फीलिंग को? भावनाओं की मुझे परवाह अच्छा मत लग रहा करिए। आमेन। Amen. Amen. You change yourself. आप अपने आप को बदलिए। Why are you living depressed? आप क्यों निराशा वाला जीवन जी No, रहे I हैं? feel depressed.
depressed, Pastor. नहीं पास्टर, मुझे बहुत निराशा महसूस Who होता told you? है। किसने आपसे कहा? No, I feel like नहीं, that. मुझे ऐसे महसूस होता Stop है। walking by feeling. तो भावनाओं से चलना बंद करिए, Start walking by faith. विश्वास से चलना शुरू करिए। Amen. Amen. So we are redeemed, तो, bought back. तो इसलिए हमें छुड़ाया गया है, दोबारा लाया गया है। We are freed from sin bondage. आप पाप के बंधन से आजाद कर दिए गए हैं, Sin had captured us, और पाप ने हमें जकड़ के रखा था, and the wrath of the law was upon us. और व्यवस्था का गुस्सा, नाराजगी हम पर But था। in the shedding of the blood of Jesus, पर यीशु के लहू बहाने से He forgave us. उसने हमें क्षमा कर दिया, He purchased our freedom हमारी आजादी को दोबारा खरीदा, from justice न्याय के द्वारा and from the power of Satan. और शैतान के ताकत से खरीदा। When this becomes a reality, और जब ये बात एक हकीकत बन जाती है, you'll understand तब आप समझेंगे how much God loves you. कि कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। You know, I was telling my wife, और मैं अपने पत्नी से कह रहा था you know, Jesus knew how much He had to suffer. कि यीशु जानता था कि उसे कितना दुख उठाना They पड़ेगा, would put the nails in His hands, और उसके हाथों में कीले ठोके जाएंगे, but yet He accepted Him. फिर भी यीशु ने उसे स्वीकारा। The one who never sinned ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया and taking the punishment of our sins. और हमारे पापों की सजा उठा रहा था। You know, if someone tells you, or Ag- God tells you, अगर कोई या प्रभु आपसे कहता है your life will be like this, कि तुम्हारा जीवन ऐसे ऐसे होगा, you have to suffer and die. इतना दुख उठा के मरना Oh पड़ेगा, my, how difficult it will become, isn't it? तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना ये जीवन जीना। But God the Father told him, this is the only time once you have to do. पर पिता परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये एक बार ही तुम्हें करना होगा, And once you finished it, और एक बार जब उसने कर दिया it is over forever. तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। No more sacrifices. अब कोई बलिदान नहीं होगा। Amen. आमेन। You have done everything. तुमने सब कुछ कर दिया Means है, God has done everything. मतलब परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया And है। every person can go to heaven अब हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान स्वर्ग जा सकता and है, become a family member of God. और परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन सकता है। I have done everything. और परमेश्वर प्रभु ने सब कुछ कर Now दिया it है, is in your hand. अब ये आपके हाथों में है। Amen. आमेन। God has done everything. प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। That's why going to heaven is the easiest. इसलिए स्वर्ग जाना ये सबसे आसान बात है, Easiest. सबसे आसान है Going स्वर्ग to जाना, hell is the most difficult. और नरक जाना सबसे मुश्किल बात है। Amen. आमेन। For every person, हर एक व्यक्ति के लिए heaven जाने का इतना नजदीक है। क्या करने का? पहाड़ चढ़ने का क्या? मार के लेने का? Nothing. कुछ नहीं करना है स्वर्ग जाने के लिए, They just have to believe in Jesus. केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना है, Finished. बस इतना ही। Amen. आमेन। So easy. इतना आसान है। देखिए, But yet people are going to hell. फिर भी लोग आज नरक जा रहे हैं। They cannot blame God. हम इस पे प्रभु को दोष That's नहीं why when लगा the rich सकते। man went to hell, इसलिए जब वो अमीर व्यक्ति नरक गया, he didn't fight. उसने वहां प्रभु से लड़ाई नहीं की, He accepted it. उसने मान लिया। प्रभु के विरुद्ध कुछ नहीं बोला वो. Though he was suffering, इसके बावजूद वो वहां दुख में था, he knew वो जानता था God is right. कि परमेश्वर सही है, I am wrong. मैं गलत हूँ। Amen. आमेन। He did everything. और परमेश्वर ने सब कुछ किया, I only needed to believe. मुझे केवल उस पे विश्वास करना था। So many came to me. कितने सारे लोग आए मेरे पास, I pushed them away. और मैंने उन्हें बाहर ढकेल दिया, I beat them, whipped them. मैंने उन्हें मारा, उन्हें ठेस पहुंचाई, I hurt them. और मैंने उन्हें नाराज किया, दर्द दिया। They just told me to believe. उन्होंने केवल मुझसे विश्वास करने के लिए कहा। Amen. Amen. It's a sad thing. It's a बहुत sad दुख की thing. बात है ये। You know, that's why we must show love between one another. इसलिए एक दूसरे के बीच में आपको प्रेम दिखाना है, That's what Jesus said. और यही यीशु ने कहा You'll be known by your love for one another. कि जो एक दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है, उससे तुम जाने And जाओगे, they'll come to God. और फिर वो प्रभु के पास आएंगे। Amen. Amen. You know, most probably I'll continue this message ज्यादातर मैं ये संदेश जारी रखूंगा, because this Thursday Kenneth is not there. क्योंकि इस गुरुवार को केनेथ भाई So नहीं I'll है, continue the same message तो इसलिए मैं यही संदेश जारी रखूंगा, because I want to show you the 10 things the blood has accomplished for you. क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ वो 10 बातें जो लहू ने आपके लिए हासिल किया है। Amen. Amen. So walk by faith. तो इसलिए विश्वास से चलिएगा। How are you feeling today? आज आपको कैसे महसूस हो रहा है? आशीर्वादित बोलिए। आमेन। एक मिनट पास्टर, चेक करता हूँ.
क्या बोलता है फीलिंग? डेविल घुस जाएगा झट से। हाँ। What God says, प्रभु क्या कहता I am है? blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। Don't wait for feelings भावनाओं के लिए रुकिए so that मत, you feel blessed. ताकि आपको आशीर्वादित महसूस हो। Amen. Amen. If you wait for feeling, it will never come. अगर आप भावनाओं का इंतजार करेंगे कब अच्छा लगेगा, तो कभी भी हाँ। ऐसा नहीं होगा। Just say it to yourself केवल अपने आप से बातें करिए, by faith. विश्वास से कहिए I am happy. कि मैं खुश हूँ, I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ। नहीं, उसने ऐसा बोला, उसको मैं फॉरगिव करके, क्षमा करके आशीर्वाद भी कर दिया। आमेन। हेलो पास्टर, डेविल बोलेगा उसने ऐसा बोला, हाँ अच्छा बोला क्या, अच्छा, उसको मैं क्षमा करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ, जाओ, हो गया। हेलो, आई डोंट गो बाय फीलिंग। और मैं भावनाओं से नहीं चलता हूँ। एनीवन सेज एनीथिंग, कोई भी चाहे कुछ भी बोले, जस्ट फॉरगिव देम एंड ब्लेस देम। माफ कर दीजिए, आशीर्वादित कर दीजिए। Amen. आमेन। कीप वॉकिंग बाय फेथ। विश्वास से चलते रहिए, These things will never become a stumbling block. और तब ये चीजें आपके लिए कभी अड़चन का कारण नहीं बनेगी। Let's all stand up. चलिए हम सब खड़े होंगे।